Hello. Good morning, ma'am. Today I will discuss the introduction of prokaryotes and eukaryotes or eukaryotic cell. Okay, what is the difference between the prokaryotic and eukaryotic cell? Is the third or the fourth topic of unit first. Prokaryotes and eukaryotes. See the difference between the prokaryotic cell and eukaryotic cell. This one is prokaryotic cell and this one is the eukaryotic cell. The cell membrane is present in both cell, either it's a prokaryotes and eukaryotes, but in higher cases. Okay, there is the presence of nucleoids, but here is the presence of nucleus, and this nucleus is surrounded by the nuclear wall. Then this one is the capsule. This is, it's a shape of bacteria, some prokaryotes. This one is the flagella. Flagella is present in prokaryotic cell, but flagella is completely absent in eukaryotic cell. Okay, there is the presence of inclusion like this, but here is the absence of inclusion. But in case of eukaryotic cells, it contains Golgi apparatus, chloroplast, mitochondria, cytoplasm, and cytoplasmic membrane. These all are present in eukaryotic cell, but most of the things are absent in prokaryotic cell. Now, next one is, this one is the picture of prokaryotic cell. How the prokaryotic cell is. First one is, this one is the capsule cell. Okay, in this layer is the capsule layer and this one is the cell wall. देख लीजिए ये cell wall present है and this one is plasma membrane. Plasma membrane means this cell is surrounded by a single membrane, that one is called as plasma membrane, and under this plasma membrane there is the circular arrangement of DNA. ये DNA क्या है? This one is the circular arrangement of DNA. It's called as nucleoid. इसको क्या बोला जाता है? Nucleoid. And this is embedded, यानी कि filled up है. किसके अंदर है? Cytoplasm. Cytoplasm क्या है? Cell का solution. Cytoplasm. There is the presence of ribosome. ये देखिए red color के dots. This one is the ribosome. Ribosome is a protein which is present in prokaryotic cell, eukaryotic also. This one is the plasmid. Plasmid means it's a separate chromosome. Okay, separate DNA chromosome which is circular in shape. This one is the inclusion. Inclusion means there is any other particular material deposition. Okay, this one is the pilus. Pilus is mostly used for the conjugation purpose. And this one is the flagella. Flagella, what is the role of flagella? Flagellum का role क्या है आपका? Movement के लिए, for locomotion के लिए. Okay, now next one is the eukaryotic cell. Eukaryotic cell क्या है? This one is the nucleus. देख लीजिए ये आपका क्या है? Nucleus है. Nucleus contains the DNA, RNA structure. DNA इसके अंदर आपका present है और just न्यूक्लियस की वॉल से, न्यूक्लियर वॉल से अटैच्ड होके फ्लैटन्ड, देख लीजिए ये फ्लैटन शेप लाइक सैक. सैक का जो स्ट्रक्चर है फ्लैटन, दैट वन इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपका. दिस वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया मीन्स पावर हाउस ऑफ सेल. सेल का पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को. This one is lysosome. Lysosome phagocytosis mechanism में mostly participate करते हैं. And this one is the Golgi apparatus. And this is Golgi apparatus. This is cytoskeleton, cytoplasm, ribosomes is also present in eukaryotic cell. Clear? Now, next one is
Now this one is the difference, okay? Prokaryotes and eukaryotes. Prokaryotic cell and eukaryotic cell. Pro means pre, karyon means nucleus. Pro means pre, primary nucleus. जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोट्स. और ट्रू न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल. ओके. Then it's originate about 3.5 billion years. And now it's a primitive form. यानी कि ये क्या है? आपका primitive form है, primary form है. And eukaryotes is the advanced form. Advanced form है. This one is the unicellular organism. ये क्या है आपका? Unicellular structure है, but it's a multicellular organism. Eukaryotes आपके क्या है? Multicellular organism, multicellular structures, multicellular cells हैं. Then incipient nucleus, true nucleus absent. जो true nucleus है वो क्या है आपका? Absent है, but here is in case of eukaryotes the true nucleus is present. These cells means prokaryotic cell, small cell size जो है सेल का वो क्या है? छोटा है. Small cell size 1 to 10 micrometer, but eukaryotic cells के size क्या है? Large. And 1 to 10 micrometer का size है. Now next one is membrane bounded organelles. और इसके अंदर membrane bounded organelles present है, जैसे कि आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स. ये सारे के सारे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है? एब्सेंट है. ठीक है. लेकिन जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स है ये आपका प्रोकैरियोटिक यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या है? आपका प्रेजेंट है. यानी कि हल जैसे गोल्गी एपरेटस है तो गोल्गी एपरेटस के ऊपर भी आपकी एक मेम्ब्रेन बाउंड है और ये अपना एक सेपरेट सेल है. लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या है? इस तरह की मेम्ब्रेन बाउंड बॉडीज प्रेजेंट नहीं है. जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ सिंगल क्रोमोसोम. इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है? एक सिंगल क्रोमोसोम है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स है. और क्रोमोसोम्स भी आपका डीएनए लाइगेज के थ्रू अटैच्ड है कंजुगेशन मेथड्स के थ्रू. लेकिन इसमें क्या है? जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ यानी कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर आपका more than one chromosomes present है. Now genetic material freely distributed in central portion of the new cell. ठीक है. प्रोकैरियोटिक सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है that one is freely distributed in central portion of the cell. देखा था आपने जो प्रीवियस स्लाइड्स पे कि किस तरह से सेंट्रल पोर्शन में आपका जो ये जेनेटिक मटेरियल है वो फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है सर्कुलर शेप में. बट जेनेटिक मटेरियल विद इन द न्यूक्लियस और जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका इसमें क्या है? यूकैरियोट्स में विद इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है. क्रोमोसोम विथ कोवेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए. जो डीएनए सेकेंड टू स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये आपका क्या है? कोवेलेंटली क्लोज्ड लाइगेज मैकेनिज्म के थ्रू ये कोवेलेंटली क्लोज्ड डीएनए है जो कि सर्कुलर इन शेप में है. बट क्रोमोसोम विथ लीनियर डीएनए इज प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स. यूकैरियोट्स में आपका जो क्रोमोसोम है लीनियर डीएनए के थ्रू यानी कि स्ट्रेट लाइन डीएनए प्रेजेंट है आपका यूकैरियोटिक सेल में. नाउ सेल डिवीजन बाय फिजन और बडिंग, माइटोसिस एंड मियोसिस कंप्लीटली एब्सेंट. देख लीजिए जो सेल डिवीजन है प्रोकैरियोट्स के अंदर वो किसके थ्रू होता है? इधर इट्स अ फिजन प्रोसेस और बडिंग प्रोसेस के थ्रू. लेकिन
आपका यूकैरियोट्स में ये किसके थ्रू होगा, मियोसिस और माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, सेल डिवीजन, यानी कि सेल किस तरह से मल्टीप्लाई करेगा। नाउ प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, जबकि इसके अंदर न्यूक्लियोलस कंप्लीटली प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है आपका यूकैरियोट्स में। राइबोसोम 17S टाइप प्रेजेंट है आपका किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में, बट राइबोसोम 80S मीन्स द 80 सब यूनिट्स, ठीक है, 50 + 30, 60 + 40 जो सब यूनिट है 80S टाइप्स का, ये आपका किसमें प्रेजेंट है, यूकैरियोट सेल में। नाउ टू सब यूनिट देख ली, राइबोसोम का 70S सब यूनिट्स टाइप, इसमें टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम्स, 50S लार्ज सब यूनिट है एंड 30S स्मॉल सब यूनिट्स है, ठीक है। ये आपका दोनों सब यूनिट मिलके आपका क्या बना रहा है, 17S टाइप राइबोसोम। और ये 17S टाइप राइबोसोम आपका कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में, बट टू सब यूनिट्स ऑफ राइबोसोम 60S large and 40S small subunits are formed 80S type ribosomes, और ये किसमें प्रेजेंट है आपका, यूकैरियोट्स में। नाउ fourth difference, 14th difference is DNA is necked, not associated with histone protein। डीएनए क्या है, नेक्ड, यानी कि किसी भी तरह के प्रोटीन से वो कवर अप नहीं है, सर नॉट सराउंडेड बाय एनी टाइप्स ऑफ प्रोटीन, लेकिन डीएनए इज रैप्ड, सराउंडेड और अराउंड हिस्टोन प्रोटीन। और जो डीएनए है आपका यूकैरियोट्स के अंदर, ये क्या है, सराउंडेड बाय हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए के आसपास क्या है आपका, हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कंप्लीटली एब्सेंट है, hence protein synthesizing ribosomes freely distributed in the cytoplasm। अब इसमें क्या है आपका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कंप्लीटली एब्सेंट। अगर ये कंप्लीटली एब्सेंट है तो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स है, जो राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, दैट इज फ्रीली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, वो साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट विथ प्रोटीन सिंथेसाइजिंग राइबोसोम अटैच्ड टू इट, ठीक है, जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग राइबोसोम्स है ये इससे क्या है, अटैच्ड है। नाउ इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम स्कार्स, जो इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम है, यानी कि मेम्ब्रेन आपका ऑर्गेनिल्स के ऊपर प्रेजेंट है, ये आपका यहाँ पर क्या है, खत्म, यानी कि प्रेजेंट नहीं है। इफ प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट है बाय चांस, देन इट्स एसोसिएटेड विथ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, तो ये किससे एसोसिएट हो रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन प्रोसेस से, किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल में। बट well developed system, well developed internal membrane system is present in eukaryotic cell and organelles surrounded by single or double cell membrane, और जो organelles है that one is surrounded by single और double cell membrane से ये क्या है आपका, surrounded है। now flagella with simple organization, जो flagella है ये present है आपका, means flagellum प्रेजेंट है विथ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, ट्यूब शेप सिलिंड्रिकल शेप में प्रेजेंट है सेल। लेकिन फ्लैजेला इज प्रेजेंट, यहाँ भी फ्लैजेला प्रेजेंट है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, इसका जो अरेंजमेंट है फ्लैजेला का वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, दैट अरेंजमेंट इज 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, बहुत छोटी छोटी माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट है, दैट वन इज 9+2 अरेंजमेंट। और माइक्रोट्यूब्यूल्स एब्सेंट इन फ्लैजेला, यहाँ पे सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है फ्लैजेला का, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपका एब्सेंट है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन फ्लैजेला प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आपका 9+2 अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में। देख लीजिए 9+2 अरेंजमेंट क्या है, दिस वन इज द सेंट्रल रेडियल, देख लीजिए 9+2, ये जो रिंग्स हैं आपका, ये डाइन रिंग्स हैं, ये 9 रिंग्स हैं, ये डबल रिंग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये सिंगल
ठीक है, सिंगल सेंट्रल 2 रिंग्स के सराउंडेड बाय क्या है, डबल 9 रिंग्स है, इसलिए इसको क्या बोला गया है, ये देख लीजिए, डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स है, सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स के अराउंड में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको क्या बोला गया, आपका कौन सा अरेंजमेंट है ये, 9+2 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। वो आपका किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोट सेल में, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में ये कंप्लीटली एंटायरली एब्सेंट है। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्लैजेला, extracellular and not enclosed by cell surface membrane। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर में है, फ्लैजेला जो प्रेजेंट है वो सेल के बाहर प्रेजेंट है, एंड नॉट एनक्लोज बाय सेल सरफेस मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है उससे आपका ये एनक्लोज नहीं है, उसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो फ्लैजेला है इंट्रासेल्यूलर, सेल के अंदर प्रेजेंट है एंड सराउंडेड बाय सेल सरफेस मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन के अंदर ही प्रेजेंट है सेल की। सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई है, आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स की, लेकिन जो सेल वॉल है ये यहाँ पे किसकी बनी हुई है, चिटिन और सेल्यूलोज की। मोस्टली हायर प्लांट्स में देखने को मिलती है सेल वॉल जो बनी हुई है, वो आपकी किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज और चिटिन की। Now, next one is ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड। हैप्लॉइड यानी कि सिंगल सेल प्रेजेंट है उसके अंदर, कंटेन ओनली अ सिंगल कॉपी ऑफ जीनोम। जीनोम की जो कॉपी है वो सिंगल प्रेजेंट है, सिंगल जीनोम की कॉपी इसके अंदर क्या है, आपका प्रेजेंट है, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हैप्लॉइड सेल। ऑर्गेनिज्म यूजुअली डिप्लॉयड। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म यूकैरियोट्स में होते हैं वो क्या है, मोस्टली डिप्लॉयड 2n में है, जबकि ये क्या है आपका सिंगल copy of genome, haploid. Now, in case of prokaryotic plasmid, extra chromosomal genetic material is present. जो जेनेटिक मटेरियल है वो आपका क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर एक्स्ट्रा प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं प्लास्मिड। बट in case of eukaryotic cell, the plasmid is completely absent. Now, साइटोस्केलेटन सिस्टम एब्सेंट। साइटोस्केलेटन सिस्टम इसमें क्या है, साइटोस्केलेटन जो सिस्टम है ये कंप्लीटली एब्सेंट है, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स साइटोस्केलेटन सिस्टम प्रेजेंट है। साइटोस्केलेटन सिस्टम के थ्रू आप सेफ दे सकते हैं किसी भी सेल को, टिश्यू को। ठीक है, साइटोस्केलेटन सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन इज बाय मेसोसोम। मेसोसोम जो सेल्स प्रेजेंट है उसके थ्रू आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स रेस्पिरेशन करेंगे, और यहाँ पे रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है दैट वन इज अकर्ड थ्रू द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये किसके थ्रू होता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, यूकैरियोटिक सेल में। नाउ नेक्स्ट वन इज क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट। और क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों टाइप्स के सेल आपका प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट है, बट in case of eukaryotics both are present with double membrane and autonomous with its own genetic material। और ये autonomous है अपने खुद के genetic materials के थ्रू। ठीक है, photosynthesis takes place in the membrane system of cytoplasm। जो साइटोप्लाज्म का membrane system है इसके अंदर आपका क्या होता है, photosynthesis process take place। Now photosynthesis takes place in chloroplast। Already chloroplast present है, उसी के अंदर आपका photosynthesis process होता है। Nitrogen fixing capacity is present in some forms। Some bacteria के अंदर nitrogen fixing capacity is present, but nitrogen fixing capacity is completely absent। लेकिन ये completely absent है किसके अंदर, eukaryotic cells के अंदर। Then endocytosis and phagocytosis completely absent। एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस जो मैकेनिज्म है, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव अप करने का, वो कंप्लीटली
एब्सेंट है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, लेकिन इन एनिमल is present. Both mechanism is present in animal cells, means it's present in eukaryotic cell. साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट, अब जो साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, फ्लूइड मूवमेंट, साइक्लोसिस बोलते हैं इसको, that one is completely absent in prokaryotic cell, but cyclosis is present in eukaryotic cells. यूकैरियोटिक सेल्स में जो साइक्लोसिस, साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट है, that one is present. Now, well developed intracellular and extracellular communication system. Intracellular means cells के अंदर communication, and extracellular means दो cells के बीच में communication. ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन कम्युनिकेशन सिस्टम इज वेल डेवलप्ड एंड एडवांस्ड, क्योंकि जो कम्युनिकेशन सिस्टम है यूकैरियोट्स में बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, एंड इट्स आल्सो द एडवांस्ड सिस्टम. सेल साइकिल ड्यूरेशन, ठीक है, जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ये कितना है, 22, जस्ट वेट, सेल साइकिल का ड्यूरेशन आपका 20 to 60 आवर्स ले लीजिए, और ये हाईली वेरीज, क्योंकि आपका यूकैरियोटिक सेल में ये हाईली वेरीज करता है. रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स 24 घंटे तक भी हो सकता है, आपका 24 घंटे तक भी हो सकता है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर. नाउ नेक्स्ट वन इज 32, रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रिलेटिवली सिंपल. जो डीएनए का रेगुलेशन मैकेनिज्म है इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में इट्स अ हाईली कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म. जो मैकेनिज्म है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स. नाउ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस अकर्स. इसके अंदर ट्रांसक्रिप्शन, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन प्रोसेस होती है, एंड अकर्स साइमल्टेनियसली इन द साइटोप्लाज्म, और साइमल्टेनियसली इन साइटोप्लाज्म में ही होती है. बट यूकैरियोटिक सेल में दे आर सेपरेट प्रोसेसेस. ये दोनों जो प्रोसेस हैं ये क्या है आपका, सेपरेट है. ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन द न्यूक्लियस. जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, कोडिंग प्रोसेस, न्यूक्लियस के अंदर. वेयर एज ट्रांसलेशन यानी कि ट्रांसफर करने का, कोड को ट्रांसफर करने का, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है अकर्स इन साइटोप्लाज्म. ये आपका किस में हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है.